वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप एकदम बढ़िया होंगे। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एंड टिल yet we have discussed the meaning of human capital, the difference between human capital and physical capital. Then after we have discussed the sources of HCF, and then we have discussed what is the relation between human capital and economic growth. In our previous class, we have discussed that due to some measurement problems, we can't prove a cause and effect relationship between human capital and economic growth, because many a times we measure the human capital formation in the forms of some numerical digits, the number of children enrolled for education, the number of people who are having proper health in the form of life expectancy and mortality rate. But these numbers are not a true indicator of quality of human capital. That's why we can say that the quality of human capital is a different concept and numerical measurement is a different concept. So only on the basis of numerical measurement, we can't say that more human capital promotes more economic growth. So in one word, you can compile only one thing, that due to measurement problem is the keyword. We can't prove a cause and effect relationship between human capital and economic growth. Now have a look, everyone. This sentence is quite important. And this one. The growth in each sector has reinforced the growth of every other sector. They are talking about the two sectors, economic growth and human capital. They are talking about these two parts. It is mentioned कि अगर इकोनॉमी में ग्रोथ होगी तो उसके corresponding human capital formation होगा. Why? Because growth means more earning with people, and people are able to earn more. They are going to invest the money in their education and health also. जो ज्यादा अर्न कर रहा होगा डेफिनेटली वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा, वो उनको प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज देगा. सो इन वन डायरेक्शन मोर इकोनॉमिक ग्रोथ विल ब्रिंग मोर इनकम फॉर पीपल, and more income will increase the level of human capital formation, because people will invest in their children, और वही investment human capital formation है. And again, more human capital formation will promote more economic growth, because educated and healthy person will be able to earn more, and that more income will again prove that more human capital formation will increase the income level of people. Pradyuman beta, let me know, is it okay now? Yes, ma'am. Okay. Then after we have discussed these two reports, हमने पढ़ा था इसको short में. Here you have to keep it in your mind that we have focused on human capital formation from our 7th 5-year plan. 9th क्लास में आपने चैप्टर 2 पढ़ा था, पीपल एज अ रिसोर्स. किस किस को ध्यान में है कि यस पढ़ा तो था कुछ ऐसा? चैप्टर याद नहीं हो तो भी पढ़ा तो था कुछ तो ऐसा. ओके, वेरी गुड. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे ही हैंड रेज कर रहे हैं कि मैम आप कह रहे हो तो पढ़ा ही होगा. चलिए हैव अ लुक. वहां पे आपने पढ़ा था कि कुछ डिकेड्स तक तो इंडिया हाई पॉपुलेशन को एक बर्डन के फॉर्म में ट्रीट करती थी. आप मुझे एक बात बताइए, मैक्सिमम लोग कैसे होते हैं, पेसिमिस्ट और ऑप्टिमिस्ट? अनम्यूट एंड स्पीक. आपने कैसे लोग देखे? क्या डिफरेंस क्या है? वेरी गुड. पेसिमिस्टिक होते हैं. हाँ चलिए अंजलि, पहले पेसिमिस्ट और ऑप्टिमिस्ट बता दीजिए अपने क्लासमेट्स को. Pessimist is someone who think always negative about the situations, and optimistic is someone who think positive about the situation. वो ग्लास वाला एग्जांपल वो याद होगा, बहुत फेमस मॉडल एग्जांपल है कि ग्लास में आधा पानी खाली है, कोई कहेगा आधा भरा हुआ है. जो कहेगा आधा भरा हुआ है वो ऑप्टिमिस्टिक, और जो कहेगा आधी खाली है वो पेसिमिस्टिक. सिंपल. अंजलि ने आप सभी को बताया है मीनिंग ऑफ पेसिमिस्ट एंड ऑप्टिमिस्ट. पेसिमिस्ट इज समवन जो गिर गया तो बोलेगा शिट, गिर गया लग गई, आज का तो दिन ही खराब था. ऑप्टिमिस्ट इज समवन जो बोलेगा थैंक्स टू गॉड, आज मैंने कुछ अच्छा किया होगा कि मैं गिरा तो मेरे थोड़ी चोट आके रह गई, है ना. तो बेसिकली जो सिचुएशन में पॉजिटिव चीजें ढूंढता है वो ऑप्टिमिस्ट है, और जो हर सिचुएशन में कुछ नेगेटिव देख लेता है वो पेसिमिस्ट है. अब आप मुझे बता दीजिए, मैक्सिमम लोग आपको क्या लगता है, पेसिमिस्ट होते हैं कि ऑप्टिमिस्ट होते हैं? पेसिमिस्ट. बस एक ही बच्चा बताएगा, दो ही बच्चे बताएंगे. यस वाहिनी? पेसिमिस्ट ही होता है. पेसिमिस्ट ही होते हैं. बिल्कुल. अगर हम ईमानदारी से खुद का भी इवैल्यूएशन करें तो मैक्सिमम टाइम पे वी आर आल्सो पेसिमिस्ट, है ना. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ. मैं कोशिश करती हूँ
100% नहीं हो पाता। मैं ऑप्टिमिस्ट बनने की बहुत कोशिश करती हूँ, आप लोग भी किया कीजिए। तो इंडियन इकोनॉमी में लोगों ने पेसिमिस्ट होके कुछ डिकेड्स तक, अभी भी हम यही कहते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ बर्डन है, हाई पॉपुलेशन इंडियन इकोनॉमी के लिए बर्डन है। अगर हम ऑप्टिमिस्ट होके सोचें तो वो जो पॉपुलेशन है उस ह्यूमन बींग्स को ह्यूमन कैपिटल में अगर हम कन्वर्ट कर दें तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी असेट बन जाएगी। उसी पॉपुलेशन की वजह से हम बहुत ज्यादा ग्रो कर पाएंगे। तो 7th 5 ईयर के प्लान के टाइम, 7th 5 ईयर प्लान से पहले यही चीजें रियलाइज करवाई गई। जैसे मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो चीज हमारे अगर मैं पर्सनली बात करूं आपसे तो मैं हमेशा ये मानती हूँ जो प्रॉब्लम हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको लेके परेशान होने से बेटर है उसका सोल्यूशन ढूंढो। अगर कंट्रोल में है तो या तो उस प्रॉब्लम को खत्म कर दें, बट कंट्रोल में नहीं है तो उसका सोल्यूशन ढूंढें। तो वैसे ही एक इकोनॉमिस्ट ने इंडिया में ये बात कही कि भाई अब पॉपुलेशन बर्डन है, पॉपुलेशन बर्डन है, इसको लेके बैठ के हम पॉपुलेशन को मार तो नहीं सकते। हाँ, फ्यूचर के लिए हम फैमिली प्लानिंग को प्रमोट कर सकते हैं ताकि हाई पॉपुलेशन ग्रोथ ना हो, उसको कंट्रोल करने के मेजर्स ले सकते हैं। बट जो करंट में है उनको लेके आप परेशान क्यों हो रहे हो कि पॉपुलेशन का बर्डन है, पॉपुलेशन का बर्डन है। रादर देन थिंकिंग इट, टेकिंग इट एज अ बर्डन, टेक इट एज एन असेट, असेट के फॉर्म में लीजिए और ये सोचिए कि आपके पास कितनी वैल्यूएबल असेट है जिनके पास माइंड है, जिनके माइंड को आप कन्वर्ट करके ह्यूमन कैपिटल बना सकते हो और ह्यूमन कैपिटल बना के कंट्री की ग्रोथ कर सकते हो। तो बताइए ये ऑप्टिमिस्ट होना सही है या नहीं है? व्हाट डू यू फील? क्या हमारी पूरी इमेज चेंज हो सकती है अगर हम ऑप्टिमिस्ट होके ये सोचें कि हाई पॉपुलेशन इंडिया के लिए बर्डन नहीं है? यस मैम। हो सकती है ना? तो हमें अपनी लाइफ में Yes, पर्सनली भी इसको अप्लाई कर देना है, ऑप्टिमिस्ट बन जाना है, आधी प्रॉब्लम्स तो वैसे ही सही हो जाएगी। अभी इसी की बात करते हैं। यहाँ पे यही बताया हुआ है कि इन 7th 5 ईयर प्लान वी हैव रियलाइज कि जो हमारी लार्ज पॉपुलेशन है वो हमारी असेट है। हम उनको अगर ट्रेनिंग और एजुकेशन प्रोवाइड करें तो ये एसेट हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमें हेल्प करेगी। इंडिया एज अ नॉलेज इकोनॉमी, आपको याद करना है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारा आईटी सेक्टर हमें स्ट्रॉन्ग करना था और हमने किया भी। Now we have already discussed the importance or role of human capital formation and we have already covered the limitations also, right? Anyone, any doubt in any point? ये जो हमने सिर्फ thoroughly समझा था, रीडिंग नहीं की थी, I guess. कोई डाउट किसी को हो तो आप बता सकते हो। No, all right then. Have a look. मैंने कहा था ये एक शॉकिंग सा कंसेप्ट आप पढ़ेंगे, ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन कैपिटल बिजनेस माइंड चलता है, इकोनॉमिस्ट का दिमाग है, और ह्यूमन डेवलपमेंट एक सोशलिस्ट का माइंड कहता है। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट एक सोशल कंसेप्ट है। मैं एक सिंपल से सेंटेंस में आपको ये दोनों क्लियर कर दूं। As per the concept of human capital, education and health is important only for those individuals who are having desire to work for the economy, who want to work for the economy and who want to increase the GDP of the economy. I am repeating my sentence. According to human capital, concept of human capital, education and health are important only for those human beings who will be able to earn the productivity and production level of the economy in near future. And according to human development, education and health is a basic right of every individual, whether the individual want to earn in future or not. क्या आप इन चीजों को थोड़ा सा माइंड ओपन करके अपने पास एनालाइज और इवैल्यूएट कर सकते हैं क्या? मैं बिल्कुल कर सकती हूँ। एक छोटे से सेंटेंस के साथ आपको बताती हूँ। अभी भी 20 to 30% फैमिलीज मानती है एजुकेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर अ गर्ल चाइल्ड बिकॉज अल्टीमेटली शी हैज टू वर्क इन अ किचन। तो जब किचन में हाउसवाइफ बन के ही रहना है तो 12th क्लास तक पढ़ा दो और छोड़ दो। क्या आपने अपने आसपास ऐसे लोगों को ऑब्जर्व किया है? हैंड रेज करके बताइए, अनम्यूट करके बताइए। क्या आपने कोई ऐसी फैमिली ऑब्जर्व की है जो लड़कों पे तो बहुत एजुकेशनल एक्सपेंडिचर करते हैं बट गर्ल चाइल्ड पे नहीं करते? उनके व्यूज सुनना, उनका व्यू है ह्यूमन कैपिटल वाला व्यू। क्या करेगी ये पढ़ लिख के? इसको तो आगे जाके करना तो चूल्हा चौका ही है ना, हाउस होल्ड टास्क ही करने हैं, किचन एक्टिविटीज में ही एंगेज होना है। बट क्या आपने इसके अपोजिट ऐसी फैमिलीज देखी है जो कहते हैं अर्निंग और नॉट अर्निंग विल बी अ चॉइस ऑफ माय डॉटर बट आई वांट हर टू बी एजुकेटेड एंड सेल्फ डिपेंडेंट। कल को पैसा नहीं भी कमाना हो तो भी आप केपेबल तो हो, आप अर्न तो कर सके, जरूरत पड़ने पे तो कर सके। ऐसी फैमिलीज देखी है क्या? बिल्कुल देखी है।
सॉरी। तो क्या यहाँ से आप सबके माइंड में ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन रिसोर्स का ये ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्लियर हो गया? चलिए, तो देखिए इसको बुक रीडिंग कर लेते हैं एक बार। ह्यूमन कैपिटल कंसिडर्स एजुकेशन एंड हेल्थ एज अ मीन्स टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एजुकेशन और हेल्थ एक्सपेंडिचर जरूरी है, यानी कि जो प्रोडक्शन नहीं करने वाला है आगे इकोनॉमी में उसके लिए एजुकेशन और हेल्थ जरूरी नहीं। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। On the other hand, according to human development, education and health are integral to human well-being, because only when people have the ability to read and write and the ability to lead a long and healthy life, they will be able to make other choices which they value. ये कह रहे हैं अर्निंग इंपॉर्टेंट नहीं है, हेल्थ और एजुकेशन होना इसलिए भी जरूरी है सो दैट वी कैन मेक बेटर चॉइसेस इन आवर लाइफ। लाइफ में और भी डिसीजंस होते हैं अर्निंग मनी के अलावा, वो सब करने के लिए आपको एक रैशनल थिंकिंग चाहिए जो एजुकेशन से ही बिल्ड हो सकती है, राइट। आगे देखिए, ह्यूमन कैपिटल ट्रीट्स ह्यूमन बीइंग्स एज अ मींस टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। Any investment in education and health is unproductive if it does not enhance output of goods and services. ये कह रहे हैं ह्यूमन कैपिटल कहता है ह्यूमन बीइंग एक ऐसा मीन्स है बाय विच वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी लेवल इन आवर इकोनॉमी, एंड वी नीड नॉट टू इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड हेल्थ ऑफ अ अनप्रोडक्टिव ह्यूमन बीइंग। अगर हमें लगता है that a person is not going to give any returns in near future, then we should not invest in the human being, ठीक है। However, अब कुछ बच्चे रिलेट कर पाएंगे, मैं अभी 2 मिनट के बाद में भी कंप्लीट करते ही आगे आपको कुछ और रिलेट करवाऊंगी। चलिए भाई आगे देखिए। However, according to human development, human beings are ends in themselves. ह्यूमन डेवलपमेंट कहता है ह्यूमन बीइंग अपने आप में ही एक एंड है, एक हम कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव है जिसको सेटिस्फाई करना जरूरी है। ह्यूमन वेलफेयर शुड बी इंक्रीज थ्रू इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ, इवन इफ सच इन्वेस्टमेंट डू नॉट रिजल्ट इन हायर लेबर प्रोडक्टिविटी। इवन जब पढ़ा के भी वो सामने वाले से हमें कोई उम्मीदें नहीं है कि वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, देन ऑल्सो वी शुड इन्वेस्ट इन एज एजुकेशन एंड हेल्थ, क्योंकि ह्यूमन बीइंग के लिए ये दोनों बहुत जरूरी है, ये बेसिक राइट है एक ह्यूमन बीइंग का। तो ये नीचे जरा सा देख लेना। Therefore, according to human development perspective, every individual has a right to get basic education and basic health care, irrespective of their labor productivity. It means every individual has a right to be literate and lead a healthy life, only according to human development. But according to human capital, only those individuals should get education and health facilities who will be adding to the productive capacity of the economy in near future. So we have completed the chapter up to our syllabus, ठीक है। Chapter number 5 up to this topic is a part of our syllabus. Now some additional topics are given which are deducted by CBSE from your syllabus, but then also I am giving an overview of these topics. Have a look. Human capital formation in India, a great prospect. Human capital formation India में जो है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर रहे हैं। जब हम बात कर रहे हैं तो फोकस दो ही चीजों पे है, एजुकेशन और हेल्थ पे, बिकॉज दीज टू आर टू इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ ये आपको बता रहे हैं कि इसमें गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया। आप देखेंगे गवर्नमेंट की हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी आपको हर जगह मिलेगी और गवर्नमेंट का स्कूल भी हर जगह मिलेगा। ये इसलिए है क्योंकि कुछ लोग अपने पर्सनल लेवल पे एजुकेशन और हेल्थ पे एक्सपेंडिचर नहीं कर पाते, केपेबल नहीं होते, but this expenditure is very important for an economy, so government has taken an initiative to incur such expenditure so as to convert the human being into human capital, है ना। इन्वेस्टमेंट करें ताकि इकोनॉमी को कुछ फ्यूचर में फायदा हो। तो यहाँ पे ये यही बता रहे हैं कि हेल्थ और एजुकेशन पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन क्यों हुआ, ताकि प्राइवेट प्रोवाइडर्स के पास सिर्फ रिच लोग पहुंच पाते हैं तो पुअर पीपल इससे अलग ना रह जाए, उनको भी सही रेट पे हेल्थ और एजुकेशनल फैसिलिटी मिले। इवन जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उनके काम में भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है। आप देख लीजिए अगर इंटरवेंशन नहीं होता तो हो सकता है अभी हम ऑफलाइन मिलते, बट गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। हम अपना सिलेबस नहीं लगा सकते, सीबीएसई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, राइट। तो गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में भी इंटरफेयर करती है ताकि वेलफेयर हो सके। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह याद कर लेना। पोलियो फ्री इंडिया वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है, हो जाएगी रीडिंग। रेगुलेटरी अथॉरिटीज बताई हुई है इंडिया में,
एजुकेशन में कौन कौन सी है? एनसीईआरटी, यूजीसी, एआईसीटीई, कुछ कॉमन बताइए। हेल्थ के अंदर आईसीएमआर, आप इनको लर्न कर लेना क्योंकि ह्यूमन कैपिटल वाला सिर्फ ये फुल फॉर्म्स। देन आफ्टर बेसिक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, गवर्नमेंट ने फंडामेंटल राइट बता दिया, राइट टू एजुकेशन भी एनेक्ट किया था इसी सीक्वेंस में। प्लस गवर्नमेंट ने ये भी बताया कि एजुकेशनल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट इंक्रीज करने वाली है। अभी गवर्नमेंट ने 6% का प्रॉमिस किया है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी में, सॉरी, ठीक है। जीडीपी का 6% कम से कम एजुकेशन पे खर्च करेगी गवर्नमेंट, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है। फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है, सिर्फ रीडिंग करनी है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट इंडियन इको की बुक संभाल के रखना, हायर स्टडीज में ये सारी चीजें पूछेंगे आपसे। हमने ये बात की थी प्रीवियस क्लास में, गवर्नमेंट का प्राइमरी एजुकेशन पे तो एक्सपेंडिचर है अच्छा खासा, बट फिर भी क्वालिटी बढ़िया नहीं है क्योंकि टेकर्स बहुत ज्यादा है, एजुकेशन टेकर्स बहुत ज्यादा है, तो उस वजह से वो एक्सपेंडिचर जो है वो फिर भी वेलफेयर प्रमोट नहीं कर पा रहा। और टर्शरी वाला एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का अच्छा रिटर्न दे रहा है। हम में से बहुत सारे लोग ये सपना देख के चलते हैं कि हमें गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, तो ये जो एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट है हायर एजुकेशन में ये काफी अच्छा है, तो गवर्नमेंट की हायर एजुकेशन की क्वालिटी बढ़िया है। फिर अपॉर्चुनिटीज अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग है, कुछ स्टेट्स एजुकेशन के मामले में बहुत पीछे तो कुछ बहुत आगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि गवर्नमेंट ने राइट टू एजुकेशन 2009 में एनेक्ट किया था कि हर चिल्ड्रन का ये राइट है, कंपल्सरी है उसके लिए कि वो 16 to 14 ईयर्स की एज ग्रुप वाला हर बच्चा जो है वो स्कूल जा सके। प्लस गवर्नमेंट हमसे जब इनकम टैक्स लेती है तो इनकम टैक्स में हमें कुछ एजुकेशनल सेस भी देना पड़ता है। जो लोग इनकम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट उनके टैक्स पे 2% का एजुकेशनल सेस भी चार्ज करती है, एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है हमें फॉर द एजुकेशन ऑफ पुअर चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप एक बार थॉरो रीडिंग करके रखना। फिर एजुकेशनल अचीवमेंट्स के बारे में बता रखे हैं। आरटीई अगर 100% एनेक्ट हो जाता तो शायद इस सेंसस तक लिटरेसी रेट 0 हो जाती, बट अभी लिटरेसी परसेंटेज 100% हो जाता, 100% लोग लिटरेट हो जाते, इलिटरेसी रेशियो 0 हो जाता, बट अभी तक 100% ऐसा हुआ नहीं है। लिटरेट पॉपुलेशन के बारे में बता रखा है, आपको ये सब नहीं लर्न करना है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बता रखा है, बहुत लोगों के लिए अभी भी एजुकेशन एक सपना है, 100% लिटरेसी का टारगेट हमने अचीव नहीं किया है। जेंडर इक्वालिटी पहले से बेटर है, मेल और फीमेल का एजुकेशन का गैप जो है, ठीक है। हायर एजुकेशन अभी भी कुछ ही लोगों के नसीब में है बस। फिर हेल्थ को अच्छे से नहीं एक्सप्लेन किया गया, एजुकेशन को किया गया, हेल्थ वाला पोर्शन लास्ट ईयर हटा दिया। क्लास का टाइम कंप्लीट हो गया है हमारा। राघव म्यूट योरसेल्फ। आपको कुछ भी डाउट्स हो अभी तो नहीं क्लियर कर पाऊंगी, क्लास ओवर हो चुकी है, टाइम ओवर हो गया। कल नया चैप्टर शुरू करेंगे, उससे पहले अगर आपके इसके कुछ भी कंफ्यूजन होंगे तो वो क्लियर आउट कर दूंगी। ओके एवरीवन, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।